Hi, my dear students. Welcome to Mathstan. Today we will be continuing the another topic, which is basically very important, very associated with your exams coming up. So, of course, we have to go through that as well. So, let us have a look at the topic, wherein we will be discussing in detail about the concepts and make them clear forever, making it simple, making it easy, and really wonderful. So, I would be showing you up the topic. I'll be sharing you up the screen. I hope you would be able to see it as well. Okay, so let us have a look at the topic today. Yes, and we are going to start with another topic today, and that is really very, very important. So, I am going to start it. Please have a look here. We are having a quick understanding about all of these things in detail. So, let's get started, my dear students. So today's topic is about the plant growth and development. Okay, so we will be having a great understanding about what are the plant growth regulators and all. Okay, and that is an important part to understand. So, my dear students, let's have a look here with what plant growth regulators are. Okay, so let's have a look here. When it comes to your plant growth regulators, what are they? They are defined as some simple, small chemicals which are produced naturally by plants and they help to regulate the growth and development at the same time. Okay, so we need to understand here that your plant growth regulators are what? These are your simple chemicals which are produced by the plant body. So plant body naturally also produces them, and artificially also, if I say, we can have it in the form of, yes, in the form of chemicals, we can also give it, okay, to the plants. So plant growth regulators क्या हैं? बहुत सिंपल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, नेचुरली प्लांट्स रिलीज कर लेता है, लेकिन अगर नहीं भी करेगा तो व्हाट इज देयर, वी नीड टू हैव अ लुक कि हम क्या कर सकते हैं, इसको आर्टिफिशियली भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट फर्स्ट कॉस्ट में वो करता है. फाइन. कमिंग टू योर कैरेक्टरिस्टिक्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो आपके यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे हम समझ सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक हियर. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं. ठीक है, बेस्ड ऑन इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं. जैसे गैसेस हैं, इथाइलिन एग्जांपल आती है, टर्पीन्स जिब्रेलिक एसिड, कार्टिनॉइड डेरिवेटिव्स एब्सिसिक एसिड. ये क्या है? आपके एथाइलिन, जिब्रेलिक एसिड, ये आपके एब्सिसिक एसिड, व्हाट आर दे? माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब जो आपको दिख रहे हैं ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ही हैं. ओके, दीज आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. गेटिंग माई पॉइंट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हेयर दैट ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग हो सकती है. कुछ गैसेस होंगे, कुछ टर्पीन्स होंगे, ओके, कुछ आपके कार्टिनॉइड डेरिवेटिव्स होंगे. सो इनको हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस या फिर हम इन्हें फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स भी बोल सकते हैं. ओके, सो वी कैन कॉल them as this way also. Fine. Now let us have a look here with the next part which is about your plant growth. प्रोमोटर्स की तरह ये काम कर सकते हैं. तो कुछ ऐसे हार्मोन्स होंगे जो प्रोमोटर्स की तरह वर्क करेंगे, which will basically help you to do what? They will help you to promote the cell division. ये सेल enlargement करेंगे, फ्लावरिंग करने में हेल्प करेंगे. ठीक है, फ्रूटिंग के लिए, सीड फॉर्मेशन के लिए. एग्जाम्पल्स में आते हैं आपके ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइंस. क्या हैं ये सारे? All of these are your simple, all of these are your, absolutely, all of these are your plant growth regulators. ठीक है, सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में प्रमोट भी किया जा सकता है और ये इसको क्या करते हैं, ये इसको इनहिबिट भी किया जा सकता है. गेटिंग माई पॉइंट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट वर्क्स. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब ज़रूरी नहीं है कि रेगुलेटर्स ही हों. कुछ क्या हो सकते हैं, कुछ यहाँ पर हमारे प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स भी हो सकते हैं और इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं. तो अभी मैं आपको बताती हूँ अबाउट द इनहिबिटर्स. ओके, सो लेट मी हैव अ गुड लुक एट दिस पार्ट. इफ आई टॉक अबाउट द इनहिबिटर, सो व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, इनहिबिटर्स की अगर बात करूँ तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे विच आर एक्चुअली व्हाट?
ये कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होंगे जो ग्रोथ को क्या करेंगे, इनहिबिट करते हैं, डोरमेंसी को प्रमोट करते हैं। डोरमेंसी क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर जो मतलब जहाँ पर क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट है, जहाँ पर जो आपका सब्सटेंस है वो क्या रहेगा, दिस विल बी, यस, वो डोमेंट हो जाएगा, वो डोमिनेट नहीं कर पाएगा सीड वगैरह, उसकी ग्रोथ जो है प्रमोशन नहीं होगी, एब्सिशन करना शुरू कर देगा, लीव्स का फॉल करवाना शुरू कर देगा। ठीक है, दैट इज अबाउट इट। गेटिंग माई पॉइंट? So moving further, we need to understand one more fact about it. That is इथाइलिन प्रमोटर की तरह भी काम कर सकता है, और जो आपका इथाइलिन है वो इनहिबिटर की तरह भी काम कर सकता है। तो टू वेज इट कैन वर्क। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की तरह भी काम हो सकता है इनका, और इनहिबिटर्स की तरह भी काम हो सकता है। ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ फीचर्स हैं कि एक तो ये रेगुलेटर्स केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है, या तो ये प्रमोट करते हैं, या तो ये क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये इनहिबिट भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी कम अप विद द नेक्स्ट पार्ट टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ओके, देखिए, जब मैं बात करती हूँ प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो हमें क्या समझ आएगा, प्लांट ग्रोथ और रेगुलेटर की हमें क्या बात समझ आएगी, वी नीड टू अंडरस्टैंड हेयर इन इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि ये क्या क्या कर सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। ये ग्रोथ और उसके फेसेस हम पढ़ेंगे, इसमें हम वर्नलाइजेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम वर्नलाइजेशन पढ़ सकते हैं। वी कैन ऑल्सो हैव अ लुक हेयर एट द फोटोपीरियोडिज्म। ओके, वी कैन ऑल्सो हैव द फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन। ठीक है, तो अभी सारा कुछ हम देखेंगे कि सारे प्लांट के जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ना, वो डिस्कवर हुए हैं। ओके, दे आर बीन डिस्कवर्ड बेसिकली, और डिस्कवर किसने, दे आर डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। ठीक है, दे हैव बीन डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, एंड लेट्स टेक अ डिटेल लुक ऑफ ईच ऑफ देम। सबसे पहला ऑक्सिन्स आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग है। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग बाय द वे टू गेट थ्रू ऑल ऑफ दिस। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस पार्ट, हमें क्या समझना है, दैट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, देखिए कैसे, जब हम बात करते हैं ना ऑक्सिन्स की, सो ऑक्सिन्स क्या है, ऑक्सिन्स जो हैं वो पहले, लाइक दे वर द फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन्स, ओके, टू बी डिस्कवर्ड। दे आर द फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन्स टू बी डिस्कवर्ड, एंड दे वर डिस्कवर्ड ड्यू टू ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ये चार्ल्स डार्विन की ऑब्जर्वेशन की वजह से ऑब्जर्व हुए हैं। सो द डार्विन्स, एक्चुअली द डार्विन्स ऑब्जर्व्ड अबाउट द कॉलियोपटाइल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एक कॉलियोपटाइल रीजन होता है, जो एक शीथ होती है, ग्रास आप देखें, कैनरी ग्रास, तो उसमें इन्होंने देखा था। जब उन्होंने नोटिस किया कि क्या करता है ये, सन जिस डायरेक्शन में है ना, उस डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट हो रही है, लाइक ग्रो उस तरफ कर रहा है, बेंड कर रहा है टूवर्ड्स द लाइट। ठीक है, तो इट वॉज ऑब्जर्व्ड इन द कॉलियोपटाइल। डार्विन, फ्रांसिस डार्विन की मतलब ऑब्जर्वेशन से ये डिस्कवरी हुई है ऑक्सीजन की। इन एडिशन, इन एक्सपेरिमेंट्स ने ये भी बताया कि कॉलियोटिप की जो कॉलियोपटाइल की जो टिप है ना, वो साइट है जो रिस्पॉन्सिबल है बेंडिंग के लिए, तो यही बेंडिंग कराती है। फाइनली इसकी वजह से क्या हुआ, पहला ऑक्सिन जो था, फर्स्ट ऑक्सिन, वो आइसोलेट किया गया। किसने किया, एफ डब्ल्यू वेंट ने किया। कहाँ से किया, कोलियोपटाइल की टिप से किया, ओट की सीडलिंग से इन्होंने सबसे पहले इसको क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। फाइन, any things up till this much, now we need to here understand that we have the different types of it also, like जो आपके ऑक्सिन्स हैं, इसके टाइप भी अलग अलग हैं, इसके फॉर्मेशंस भी अलग अलग हैं, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक हियर। पहला आता है फर्स्ट, तो जो पहला आइसोलेटेड है फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। Auxin is termed a term which is applied to natural and synthetic products that have growth regulating properties. पहला आइसोलेटेड कहाँ से हमने किया था, ये ह्यूमन यूरिन से किया था। और ऑक्सिन जो है वो नेचुरल सिंथेटिक कंपाउंड्स के लिए एसोसिएट की जाती है फॉर दोज थिंग्स विच आर हैविंग द ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज। प्लांट्स नेचुरल ऑक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। सो नेचुरल ऑक्सिन्स जो हैं, दे आर फाउंड इन द ग्रोइंग स्टेम्स एंड रूट्स फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, अब देखें, नैप्थलीन एसिटिक एसिड जो आता है, N2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड आता है, ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स की एक्चुअली क्या है,
फॉर्मेशन से। ठीक है, सो यहाँ पर आपको याद रखना है, पहले ह्यूमन ऑक्सीजन से आइसोलेट किया, प्लांट्स नेचुरल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, IAA, IBA। नेचुरल ऑक्सीजन आपको ग्रोइंग स्टेम्स में, रूट्स में मिलेंगे, फिर वहाँ से वो माइग्रेट करते हैं टू द साइट ऑफ एक्शन। नैप्थेलिक एसिटिक एसिड और 2,4-D, दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सीएसिटिक, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना नेचुरल कौन से, सिंथेटिक कौन से हैं। ये और ये नेचुरल है, नैप्थिक एसिटिक एसिड, और 2,4-D जो है वो सिंथेटिक है। ठीक है, अब आता है कि इसके इफेक्ट क्या है, क्या यूज होगा इसका बेसिकली। सो जो आपका ऑक्सीजन है ना, उसका मेन काम क्या है, मेन काम रहता है इसका ऑक्सीजन का टू प्रमोट, व्हाट डज इट प्रमोट, है ना, इट एक्चुअली प्रमोट द फ्लावरिंग। ठीक है, सो ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, जैसे कि पाइनएप्पल। ठीक है, ये रूटिंग को, स्टेम कटिंग्स की रूटिंग को इनिशिएट करता है, ये फ्रूट्स की ड्रॉपिंग को प्रिवेंट करता है और लीव्स को जल्दी गिरने से रोकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे फीचर्स इसके पास एग्जिस्ट करते हैं। इतना ही नहीं, ये प्रमोट करता है नेचुरल डिटैचमेंट को भी। ठीक है, यानी एब्सिशन को ओल्डर लीव्स की और फ्रूट्स की, जाइलम की डिफरेंशिएशन को भी ये करता है। ओके, सो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आता है कि ये प्रमोट करता है नेचुरल डिटैचमेंट, खुद से एब्सिशन हो जाए ओल्डर लीव्स की और फ्रूट्स की। कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशन और हेल्प करता है अबाउट व्हाट, इट ऑल्सो हेल्प्स इज द, इट ऑल्सो हेल्प इन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इन द जाइलम डिफरेंशिएशन। माय डियर स्टूडेंट, जाइलम जो होता है ना, वो डिफरेंशिएट करता है और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, ये सब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, इट हैज टू फॉर्म इट। Getting my point? So that is one important thing you should have a focus on. Okay. Now, coming up to this part, we need to understand here that it is about your controlling the xylem differentiation and helping in cell division. एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज करते हैं, इज डिफरेंट फ्रॉम इफेक्ट क्या करता है। इफेक्ट्स इसके कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है प्लांट्स में, रूटिंग इनिशिएट करता है लीव्स और उसको जल्दी गिरने से बचाता है, नेचुरल डिटैचमेंट एब्सिशन करता है पुराने लीव्स की, और जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन के लिए हेल्प करता है। तो बात आती है यूज कहाँ होता है। ओके, thing comes up where it is used. Fine. So, my dear students, let's understand like where it is actually used. So, ये use कहाँ होता है? That has to be seen as one point. Now, coming to the next part, we just have to look at the different applications which are being performed. So, कौन-कौन से applications हैं इस ऑक्सीजन की, राइट? तो ऑक्सीजन देखिए किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। एक तो प्लांट प्रोपगेट करवाना हो, ऑक्सीजन यूज़ करेंगे। जब भी हम रोज़ कटिंग करके किसी और पे लगाते हैं, है ना, लेयरिंग करें, ग्राफ्टिंग करें, तो हमें कुछ मीडियम देना पड़ता है उसको ग्रो करने के लिए, हम ऑक्सीजन लगाते हैं। टू इंड्यूस द पार्थिनोकार्पी, आप चाहते हैं कि फ्रूट बने लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाए, तो आप चाहते हैं ऐसा, पार्थिनोकार्पी चाहते हैं, ठीक है, चाहो तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। 2,4-D, दैट इज 2,4 इंडोल एसिटिक एसिड, दैट इज यूज्ड एज द हर्बिसाइड, इसको हर्बिसाइड की तरह भी यूज करते हैं। डाइकॉट्स में जो वीड वगैरह आते हैं, जैसे कि आपके ग्रासेस को छोड़ के जो बाकी हैं, उनमें अगर कोई वीड वगैरह भी आता है तो उसके लिए 2,4-D एज अ हर्बिसाइड भी काम करता है। इसके अलावा गार्डनर्स इसको लॉन में वीड फ्री, मतलब अपना लॉन ग्रो करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो ऑक्सीजन आर हैविंग लॉट ऑफ इंपॉर्टेंसेस, बट माय डियर स्टूडेंट्स, द ग्रोइंग एपिकल बर्ड इन हायर प्लांट्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स, फिनोमिना इज एपिकल डोमिनेंस। अब होता क्या है, जो आपका ऊपर यहाँ पर ग्रो कर रहा है, दिस इज एक्टिव एपिकल बर्ड। ठीक है, इसकी जब ग्रोथ होती है ना, इसकी ग्रोथ की वजह से क्या होता है, लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ठीक है, दो चीजें होती है, एपिकल डोमिनेंस होती है एक, और एक होता है जिसमें आप लेटरल डोमिनेंस होती है। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है कि लेटरल की ग्रोथ ना करवा के हाइट में ग्रोथ करवाते हो, आप एपिकली ग्रो करवाते हो उसको, तो वो कैसे पॉसिबल है, दैट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। ग्रोइंग एपिकल बर्ड इन हायर प्लांट्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, इसे बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होता है कि एपिकल डोमिनेंस होती रहती है, एपिकल साइड से ये बढ़ता रहता है और लेटरल डेवलपमेंट होती ही नहीं है। तो अगर आप एपिकल बर्ड को ही रिमूव कर दो तो क्या होगा, लेटरल बर्ड जो है ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इस टेक्निक को टी प्लांटेशंस में या हेज मेकिंग में बहुत ज़्यादा कॉमनली इसको यूज किया जाता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। I hope this point is very clear, right?
Okay, now please understand here with the next one. That is about your removal of the apical bud. That is going to lead to this part. Now, after auxins, my dear students, हमारे पास आते हैं gibberellins, which are very, very important. ठीक है, so we have the gibberellins. Now, gibberellins क्या करते हैं? Gibberellins are very important. ठीक है, जिब्रेलिन्स का सिंपल है कि जिब्रेलिन्स जो है कहाँ से डिस्कवर हुए सबसे पहले, ये होता है एक कंपोनेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है बैकेन डिजीज के लिए सीडलिंग्स में। ठीक है, इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? फंगल पैथोजन उसको कॉज करता है, जिसका नाम है जिब्रेला फ्यूजिकुराई। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जिब्रेला जिब्रेला फ्यूजिकुराई इसका नाम है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट it is something which is related with the disease like the Gibrella fujikuroi या जिसे आप बोलते हैं कुरोसोवा। ये ट्रीट अब होता क्या है कि ये जो आपका पैथोजन है ना, या फिर आपका ई कुरोसोवा हो गया, इसको ट्रीट करो जब आप अनइफेक्टेड राइस सीडलिंग्स को स्टेराइल फिल्ट्रेट्स के साथ फंगस के, तो आपको ये डिजीज़ के सिम्टम्स ज़रूर दिखेंगे, ज़रूर दिखेंगे आपको ये सिम्टम्स। ठीक है, सो ये जो सिम्टम्स हैं डिजीज़ के, फाइनली एक्टिव सब्सटेंस जो उसको डिजीज़ कॉज कर रहा था उसको बोल रहे थे कि क्या है? ये जिब्रेलिक एसिड है। ठीक है, इसका नाम क्या दिया जा रहा था? इट वाज नेम्ड एज जिब्रेलिक एसिड। ओके, नाउ व्हेन इट इज नेम्ड एज जिब्रेलिक एसिड, हमको क्या समझना है? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जिब्रेलिक एसिड इज नॉट ओनली रिलेटेड टू कॉजिंग सम डिजीज, इसके बहुत सारे और इफेक्ट्स भी है, बहुत सारे और काम भी हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट वर्क डज इट हैव टू डू विद। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स। जहाँ पर देखें तो 100 जिब्रेलिन्स जो हैं उससे भी ज़्यादा क्या एग्जिस्ट करते हैं? जिब्रेलिन्स एग्जिस्ट करते हैं। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फंजाई टू हायर प्लांट्स, कहाँ से आपको मिलते हैं? बहुत सारे फंजाई से, और बहुत सारे हायर प्लांट्स में भी आपको ये फॉर्मेशन में मिलेंगे। ठीक है, now we need to have a quick understanding about this, that it is not only associated with this, it is also associated with so many other effects। जैसे जैसे ये क्या करता है? एक्सेस लेंथ को प्लांट्स में इंक्रीज करता है, जिससे ग्रेप की स्टाक्स को बढ़ाना हो, सेनेसेंस यानी एजिंग को कम करना हो, जिसकी वजह से मार्केट पीरियड किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस हैव अ लुक हियर। हेल्प फ्रूट्स like apples to elongate and improve their shape। ठीक है, और ये सब इसके इफेक्ट्स हैं। तो इफेक्ट्स आर वेरी अमेजिंग, इफेक्ट्स तो बहुत अमेजिंग है, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ये इंक्रीज करता है एक्सेस की लेंथ इन प्लांट्स सच एज ग्रेप स्टाक्स, डिले करता है सेनेसेंस को, या फिर एप्पल्स वगैरह के फ्रूट्स को हो गया उनको इलोंगेट करेगा, या फिर उनकी शेप को भी इंप्रूव करेगा। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी एप्लीकेशंस बहुत वाइड स्प्रेड हैं। ब्रूइंग इंडस्ट्री यानी कि वो इंडस्ट्री जो क्या यूज़ कर रही है? द ब्रूइंग इंडस्ट्री इज द वन विच एक्चुअली यूजेस द लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बियर मेकिंग, राइट? वहां पर ये किस तरह से वर्क करेगी, वी नीड टू हैव अ क्विक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट। Okay, so now let's see here what makes the sense. So here if I say brewing industry GA3 जिब्रेलिक एसिड 3 को यूज करती है माल्टिंग प्रोसेस में। ठीक है, then spraying gibberellins increases what? sugarcane yield by lengthening the स्टेम को। आपको पता है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये एक शुगर केन है, तो बीच में ऐसे नोड्स होते हैं, राइट? अब क्या करेंगे हम चाहते हैं कि इसके नोड्स इंक्रीज कर जाएं। यही नोड है जो अब इतने से इतना हो गया हुआ है, तो साइज इंक्रीज हो गया। उसके बाद मेच्योरिटी पीरियड को हेस्टन करने के लिए यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, इन यंग कॉर्नफर्स, और प्रमोट करता है अर्ली सीड प्रोडक्शन को भी। आई होप दिस इज क्लियर। फाइन, now let's understand here is the next part। Okay, now when I say here about the main thing that is about the application, तो हमें ये समझना है कि ये बॉल्टिंग को भी प्रमोट करता है, मतलब सर्डन प्लांट की ग्रोथ कर देगा जस्ट बिफोर फ्लावरिंग। कैबेजेस और बीट में बड़ा कॉमन होता है, तो इसीलिए हम जिब्रेलिक एसिड हमेशा ध्यान से डालते हैं। ओके, now let's have a look here with the next part that is about your cytokinin। so हमने जिब्रेलिक एसिड भी देखा, हमने ऑक्सिन भी देखा, अब हम क्या देखेंगे? we will have to look at the cytokinins। ठीक है, so cytokinins, what do we understand?
My dear students, cytokinin is really very important. Why? Because जो cytokinin है ये एफ स्कूग ने और उनके वर्कर्स ने निकाला। कैसे? वो मास ऑफ सेल के ऊपर काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग ऑन दैट, और उन्होंने उसको कैलस बोला टबैको प्लांट में। ठीक है, क्या होता है ये? दिस इज एक्चुअली योर सिंपल कैलस। क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास होता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, now, coming to this part, we have these cells proliferated only when the nutrient medium contained oxygens along with the yeast. Okay, extract or extract of the vascular tissue. स्कूग और मिलर जो थे उन्होंने लेटर आइडेंटिफाई किया एक्टिव सब्सटेंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोलिफरेशन के लिए, और उनको बोला जाता है काइनेटिन। क्या बोलते हैं? काइनेटिन बोलते हैं। सो ये भी किसका टाइप है? दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ द साइटोकाइनिन। Fine. Now we will have to understand one more interesting thing. That is your that is your types. साइटोकाइनिन्स अलग अलग टाइप्स के हैं। ये जो काइनेटिन है ये भी एक टाइप ही है। साइटोकाइनिन को डिस्कवर काइनेटिन की तरह ही किया गया, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज अ टाइप ऑफ इट। Fine. Now let us have understanding on what we understand by this part. Cytokinins kinetin ने discover किए हैं। Kinetin does not occur naturally, but scientists later discovered several natural examples जैसे zeatin, chitin और synthetic cytokinins भी exist करते हैं। Natural cytokinin कहाँ पर होते हैं? रूट के एपाइसेस में, एपिक्स में होते हैं, और डेवलपिंग शूट बड्स में, एरियाज में होते हैं जहाँ पर रैपिडली सेल डिवीजन होती रहती है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एग्जाम्पल्स अगर देना चाहूँ तो यू विल अंडरस्टैंड। इफेक्ट्स क्या होंगे? ये एक तो फॉर्मेशन करता है नए नए लीव्स की। ठीक है, तो ये लीव्स की क्या करता है? हाँ, ये फॉर्मेशन करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट के लिए। ठीक है, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेटरल शूट ग्रोथ करता है और एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन भी ये फॉर्म करता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नॉट ओनली दिस, अगेन वन थिंग कम्स अप हेयर दैट ये एपिकल डोमिनेंस को भी ओवरकम करता है। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है यानी कि लेटरल ग्रोथ करता है। ऑल्सो इट प्रमोट्स द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच इन टर्न हेल्प टू डिले द लीफ सेनेसेंस। देखो, लीफ सेनेसेंस को डिले करना है, हाँ कर सकते हैं। हाउ वी विल डू? वी विल हैव टू प्रमोट द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, देन ओनली वी कैन अंडरगो दिस प्रोसेस, और वी कैन से इट कैन हैपन। आई होप दिस इज क्लियर। Now let's have a look here with the next part, that is your abscisic acid. तो हमने देखा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड। ओके, वी हैव आल्सो सीन ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड। अब आता है आपका एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा कॉमन है फॉर द वर्क इट डज। ओके, what does the function it has to play? We have to see that. So have a look here. Three independent researchers, they reported the purification and characterization of three independent inhibitors, inhibitor A, inhibitor B, abscission 2 and dormant. तो ये तीन तीन क्या हैं? अलग अलग inhibitors हैं. These are different inhibitors and they have some important role to play. Okay. So let's have a look here with the discovery. Three independent researchers, they reported the purification and characterization of three different inhibitors, inhibitor B, abscission 2 and dormant. Later it was found कि सारे के सारे inhibitors chemically identical हैं, और जब आप इनको together देखो ना तो they were named as the abscisic। तो उसी की forms है inhibitor B, abscission 2 और dormant. I hope this is clear. ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पर दैट थ्री इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया है दैट द प्यूरिफिकेशन इज एक्चुअली व्हाट द प्यूरिफिकेशन ऑफ दिस इज कैरेक्टराइजेशन ऑफ द इनहिबिटर्स, दैट इज बी, ए, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मेंट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एब्सिसिक एसिड कहीं ना कहीं जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्टिक काम करता है, उल्टा काम करता है ये। ठीक है, हाउ डज इट वर्क? दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाइसली। ओके, नाउ हैव अ लुक हियर विद दिस पार्ट। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं हमें वो समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी समझते हैं विद दिस पार्ट। ओके, दैट इज अबाउट योर इफेक्ट्स ऑफ इट। क्या इफेक्ट्स हैं? पहला, ये रेगुलेट करता है एब्सिशन को भी और डोरमेंसी को भी। ठीक है, ये एब्सिशन को भी रेगुलेट करता है और डोरमेंसी को भी रेगुलेट करता है।
Fine. So let us have a look here. It inhibits the plant growth, metabolism, and seed germination. Okay. Then what does it do? ये एक चीज और करता है, ये स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन एपिडर्मिस. Okay, so we have to be very quick and understand this part, that it is somewhat which is associated with what? It is somewhat which is associated with the, yes, stimulating the closure of the stomata also. I hope this is clear. Now, let us understand here about this part, which is about your, yes, that is your stimulating, and it also increases the tolerance of the plants to different kind of stresses, and this is therefore called as stress hormone. So ये प्लांट को हेल्प करता है टॉलरेट करने में बहुत सारा स्ट्रेस भी, और जब ये स्ट्रेस को टॉलरेट करता है, सो देयर इज ऑल्सो वन थिंग मोर, यहाँ पर एक चीज और आ जाती है, दैट इज योर, दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन. सो ये बहुत बारी पूछा जाता है स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है प्लांट्स में, तो माय डियर स्टूडेंट्स वो होता है आपका एब्सिसिक एसिड. आई होप दिस इज क्लियर. Okay, now let us understand here with the next part, which is about your important for seed development or maturation. ठीक है, ये important है किसके लिए? ये important है about the about the seed development के लिए और maturation के लिए भी, और ये dormancy को भी induce करता है और उनको desiccation से protect भी करता है, unfavorable growth factor से भी protect करने का काम इसी का ही है. Okay, we need to understand here. Okay, we need to understand here very nicely. Now let us have a look here at the next one, which is ethylene. Ethylene is also very, very common. Okay, क्यों common है? We need to have an understanding of this also. Okay, तो चलिए देखते हैं अब इसके बारे में. Just have a look here with this part. Now, coming to ethylene, तो क्या होता है my dear students? Group of cousins they show that a gaseous substance release होता है जब ripe oranges जो हैं वो ripe करते हैं, like they hastens the ripening of unripe oranges. कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि पके हुए oranges unripe oranges को भी पका देते हैं. ठीक है, तो अब ये जो कुछ होता है वो कैसे हुआ, वो कैसे एक्सप्लेन किया गया, we need to have a look at that part. Okay, so we will have to see at that point also. Now, यहाँ से कॉन्सिक्वेंटली ये पता चला कि सब्सटेंस जो है वो कुछ नहीं, वो इथाइलिन ही है. सिंपलेस्ट गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो क्या करता है, जो एक्चुअली राइपनिंग फ्रूट्स में और टिश्यूज में जो अंडर गो करते हैं सेनेसेंस, वो प्रोड्यूस करते हैं इथाइलिन को. ठीक है, और वो इथाइलिन को प्रोड्यूस करते हैं ऑन अ लार्ज अमाउंट बेसिकली. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ अब इसके इफेक्ट्स क्या है, मतलब ये कर क्या क्या सकते हैं. सो इट इज़ वेरी अंडरस्टूड एंड थिंग टू गेट थ्रू दैट इफेक्ट्स क्या होंगे कि ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर सकता है, उसको इफेक्ट कर सकता है सीडलिंग की, और एक्सेस के स्वेलिंग को भी इफेक्ट कर सकता है डाइकॉट की सीडलिंग्स में. ठीक है, इसके अलावा ये एब्सिशन को प्रमोट कर सकता है. ठीक है, और क्या कर सकता है, सेनेसेंस को भी प्रमोट कर सकता है, स्पेशली लीव्स वगैरह की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये कॉमनली काम करता है, फ्लावर्स में भी. रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देगा. जब रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ाएगा तो क्या होगा, जब भी रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ाएगा तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, दैट इज इट इज गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, देयरफॉर रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक बोलते हैं इसे. ठीक है, रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी, तो दैट इज ऑल्सो इनहेंस्ड बाय मीन्स ऑफ इथाइलिन. सो इथाइलिन को इतना हल्के में नहीं लेना है. ये रूट के ग्रोथ और रूट के हेयर फॉर्मेशन को भी इम्प्रूव करता है, और ये प्लांट की बहुत हेल्प करता है ताकि अपना ये एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ा सके. सरफेस एरिया बढ़ेगा, रूट हेयर बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, तो फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा. अगेन एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब किया जाएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगा. आई होप दिस इज क्लियर. मूविंग फर्दर वी ऑल्सो हैव सर्टन एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द सेम. अब इथाइलिन क्या कर सकता है,
इथाइलिन रेगुलेट करता है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को एंड देयरफॉर इसको हम वाइडली यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं वाइडली? हम इसको एग्रीकल्चर में बहुत खूब यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज सोर्स इथाइलिन की क्या है? एथिफॉन है। प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं एक्वा सोल्यूशन को एथिफॉन के, और ये रिलीज करता रहता है इथाइलिन को बहुत आहिस्ते आहिस्ते। तो एप्लीकेशन तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। नाउ it is used to break what? It is also used for what? It is also used for breaking the seed and bud dormancy, और ये initiate करने के लिए germination in the peanut seeds. Okay, fine. Now we need to understand here that it is also promoting what? ये promote करता है हमारा sprouting भी, ठीक है, potato tubers की sprouting को भी। Okay, now coming up to the next one, we have to see that it is also used to rapidly boost the petiole elongation. Petiole elongate करता है deep water rice plants में। कौन करता है? One and only इथाइलिन। फ्लावरिंग को इनिशिएट करना है या सिंक्रोनाइज करना है फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स, यही काम करता है। फ्लावरिंग मैंगो में इंड्यूस करनी है, ये काम करता है। अब देखो जो एथिफॉन है ना, वो हेस्टन कर देता है फ्रूट राइपनिंग को प्लांट्स में, ठीक है, एप्पल्स में, जैसे टोमेटोज में। तो ये इंक्रीज करता है यील्ड, क्योंकि फीमेल फ्लावर्स जैसे क्यूकम्बर्स में बढ़ेंगे, चांसेस ऑफ गेटिंग इट विल बी इंक्रीजिंग, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इफ इट ऑल्सो एक्सेलरेट्स द एब्सिशन इन चेरी। चेरी में ये क्या करता है? एक्सेलरेट करता है एब्सिशन को, और वॉलनट्स में, कॉटन में इट हेल्प्स अ लॉट, बहुत हेल्प करता है ये। फाइन। Now, moving further, we need to understand that it is somewhat associated what it is somewhat associated with. Have a look here. This one goes to be in your summary, one or other plant growth regulator. They influence every phase of growth or development in plants. That is, ये जो roles हैं, they could be individualistic or synergistic, promoting or inhibiting. So additionally अगर बात करें, एक से ज़्यादा regulator plant को पूरी life में impact करता है, बिल्कुल करता है, because एक ही नहीं करता, बहुत सारे हैं which help. Okay, so we need to understand here that it is associated with what? It is associated with two things. That is, yes, so it is associated with the factors like temperature, light, ये भी affect करते हैं कि किस तरह से temperature होगा, किस तरह से चीज़ें would work, but it does exist in the farm. I hope this is clear. Now, टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट थिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर्स तो इम्पैक्ट करते हैं, जैसे वर्नलाइजेशन हो गया, कितना उसको लाइट मिलेगी एक दिन में, और कितना उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कैसा है उसका, लाइट कितना इम्पैक्ट हो रहा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, कुछ ऐसे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। ओके, सो दैट इज योर वन थिंग। आई होप दिस इज क्लियर। All right. Now moving further, we will have to see some characteristics of the plant growth. कौन कौन से फैक्टर्स उन्हें इम्पैक्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम्स अप कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, ठीक है, कौन कौन से ऐसे डिफरेंट काइंड के फैक्टर्स आपको यहाँ मिलते हैं। सो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ, है ना। सारे ऑर्गेनिजम्स, बेशक वो सिंपल हो या बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट हो, वो स्लोली क्या कर रहे हैं, पूरा टाइम वो चेंज कर रहे हैं, पूरा टाइम वो मैनेजमेंट्स कर रहे हैं, ताकि वो क्या कर सकें, ताकि वो अलाइव रह सके, वो जिंदा रह सकें। Getting my point? So it is important thing to understand, right? So सारे ऑर्गेनिजम्स, बेशक वो सिंपलेस्ट हो, इंट्रिकेट हो, दे आर ट्राइंग देमसेल्व्स हार्ड, ताकि वो क्या कर सकें, दे कैन सर्वाइव वेल। ओके, ताकि वो अच्छे से क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, अपने मटेरियल को मोर ऑफ देमसेल्व्स वो ट्रांसफॉर्म कर सकें। सो जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं आपके पास, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, वाइटामिन हैं, हॉर्मोन्स हैं, ये सब चीज़ें जो आपके पास है ना, ये ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एडिशनल प्रोटोप्लास्ट आपको मिलते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। इट इज ऑल्सो अ सिस्टम वेयर इन विच यू एक्चुअली सी, ठीक है, जो आप देखते हैं, ठीक है। सो दैट इज एसिमिलेशन।
सो लार्ज पार्ट ऑफ फूड की अगर मैं बात करूँ, सो विच अ प्लांट मैन्युफैक्चर्स इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड कंज्यूम भी किया जा सकता है, ठीक है, फूड कंज्यूम भी किया जा सकता है सून आफ्टर इट इज प्रोसेस्ड और प्रोड्यूस्ड, या फिर वो स्टोर करके ज़्यादा देर तक रख सकते हैं ताकि उनके ऑफस्प्रिंग्स को भी वीक्स में मिले, मंथ्स के लिए, लेटर ईयर्स के लिए। ओके, सो दिस इज वन सच पार्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक हेल्दी प्लांट जो है वो क्या करेगा, वो मैन्युफैक्चर करता है और ज़्यादा ज़्यादा फूड, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ जो है, लिविंग एक्टिविटीज़ हैं, उसको मेंटेन कर सके, ठीक है, और सरप्लस जो है वो क्या कर सके, बिल्ड कर सके मोर और लेस परमानेंटली इनटू टिश्यूज प्रोड्यूसिंग न्यू सा प्रोटोप्लाज्म, या फिर नया ये क्या कर सकते हैं, सेल वॉल्स फॉर्म कर सकते हैं, और ग्रोथ जो है प्लांट बॉडी की वो प्रमोट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ग्रोथ क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है एक्सेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव ओवर डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। फाइनली कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज अबाउट ग्रोथ इन्वॉल्व्स एन इरिवर्सिबल। देखो एक बारी जिसकी ग्रोथ हो गई वापस रिवर्स नहीं कर सकते उसको, दैट इज वाई व्हाट डू वी से, हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये इरिवर्सिबल मैकेनिज्म है। ओके, सो इट इज सेड टू बी द irreversible mechanism. Fine. When it is your irreversible mechanism, what do we understand? We have to understand, my dear students, that it is somewhat associated with, that is accompanied by the increase in the dry weight. ठीक है, सो एक बार ड्राई वेट इंक्रीज हो गया तो क्या वो और इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है आगे? नॉट पॉसिबल। सो बेसिक जो प्रोसेस है ग्रोथ का इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म विच इज क्लियरली एविडेंट इन दीज रीजन्स ऑफ द एक्टिव सेल डिवीजन। फाइन। नाउ जो अगली स्टेज होती है ग्रोथ की, वो होती है प्लांट के साइज में इंक्रीज करना, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होगी वाटर की, कॉन्सिक्वेंस स्ट्रेचिंग होगी टिश्यूज की, और ये जो प्रोसेस है ना, ये कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट सेंस में ग्रोथ नहीं है, सिंस इट इन्वॉल्व्स लिटिल, या फिर कोई भी इसमें इंक्रीज नहीं होता कैरेक्टरिस्टिक मटेरियल ऑफ प्लांट का। सो जो सबसे फाइनल थर्ड लास्ट स्टेज होती है, इसमें होता है कि एंट्री हो जाए, प्लेंटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल आ जाए, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएं, एक्सपैंडेड यंग टिश्यूज आ जाएं, जिसकी वजह से ड्राई वेट इंक्रीज हो जाए, बट विजिबल इंक्रीज एक्सटर्नल साइजेस में ना हो। सो ग्रोथ इज हाउएवर मोर देन जस्ट एन अमाउंट, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ प्लांट, ठीक है, ग्रोथ इज हाउएवर मोर देन जस्ट एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ प्लांट। सो डिफरेंशिएटेड जो आपके ग्रोथ है, डिफरेंशियल ग्रोथ है प्लांट के पार्ट्स की, वो रिजल्ट करती है इन अ कैरेक्टरिस्टिक शेप। सो हर एक प्लांट स्पीशीज जो है उसकी एक डिस्टिंक्टिव फॉर्म होती है, डेवलपमेंट बाय ग्रोथ पैटर्न्स होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। Coming up to your differentiation, differentiation can be recognized at the cell level, tissue level, organ level, and at the level of an organism also. So it becomes more obvious at the level of an organ या organism. For instance, अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर हम एक फ्लावर को कंसीडर करें एज एन ऑर्गन ऑफ अ प्लांट, जो सेपल्स बियर कर रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रोटेक्शन कर रहा है उसकी इनर फ्लावर पार्ट्स के लिए, ब्यूटीफुल कलर्ड पेटल्स हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके, क्रॉस पॉलिनेशन हो सके, स्टेमेंस हैं ताकि मेल गेमीट्स प्रोड्यूस हो, कार्पल्स हैं फॉर बियरिंग द ओव्यूल्स, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो सीड्स बना सके। व्हाट इज ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी मच एसेंशियल। फाइन, सारी चीजें ये बहुत ज्यादा क्या हैं, जरूरी हैं, दे आर असेंशियल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हेयर अबाउट दिस वन फैक्ट फन ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जब हम एंजियोस्पर्म को कंसीडर करते हैं ना, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो पोजेस करता है रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, और सॉइल की फिक्सेशन के लिए भी। सो ट्रंक और स्टेम के जो ब्रांचेस हैं वो बियर करते हैं लीव्स को फॉर फोटोसिंथेसिस, फॉर फ्लावर्स, फॉर फ्रूट्स। सो फ्रूट्स फॉर बियरिंग द सीड्स व्हिच ऑन जर्मिनेशन विल लीड टू द अनदर पार्ट। फाइन। Now coming to your next part about the development. Have a look at the development part. When I talk about the development part, we need to understand that development imply करती है whole sequence of qualitative structural changes, ठीक है, that a plant undergoes। एक zygote की stage से डेथ तक जब जाएगा तो developmental changes तो होते रहेंगे, वो ग्रेजुअल भी हो सकते हैं, अब्रप्ट भी हो सकते हैं, जैसे सर्टन चेंजेस जर्मिनेशन में, फ्लावरिंग में, सेनेसेंस में। फाइन।
aging that leads to the slow developmental changes including the formation, maturation of tissues, वेजिटेटिव और फ्लोरल बर्ड्स का बनना या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का प्रोड्यूस होना। तो ग्रोथ की तरह अनलाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज है माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रोथ क्या है? सिर्फ क्वांटिटेटिवली जब ग्रो कर रहा है। क्वालिटेटिवली अगर हम बात करें तो क्या आता है? दैट इज योर डेवलपमेंट। सो इसको आप मेजर नहीं कर सकते क्वांटिटेटिव टर्म्स में, या ठीक है, आप इसको इलस्ट्रेट कर सकते हो फोटोग्राफ से, आप इसको इलस्ट्रेट कर सकते हो ड्राइंग से। सो डेवलपमेंट इज डिफरेंट। डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? ये देखिए, डेवलपमेंट में आता है आपकी ग्रोथ, सेल डिवीजन हो रही है, enlargement, differentiation, morphogenesis, maturation, organogenesis, senescence. This all is included here. I hope this much is clear. सो जाइगोट जो ग्रोथ साइकिल होता है एनुअल मोनोकार्पिक या फ्लावरिंग प्लांट्स का, जैसे एंजियोस्पर्म्स हो गए, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? दैट बिगिंस विद अ फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट से। और जाइगोट डेवलप करता है एक एम्ब्रियो में, और सेल डिवीजन के बाद डिफरेंशिएशंस होती हैं, तो एम्ब्रियो सीड के अंदर आ जाता है। वी नो द सीड इज द थिंग विच इज द लाइक ओव्यूल, और ओवरी से क्या बना? फ्रूट। सो जो रेस्टिंग एम्ब्रियो होते हैं वो अपनी रिज्यूम कब करते हैं जर्मिनेशन का प्रोसेस? जब उनकी कंडीशंस मेच्योर होती हैं, व्हेन दे डेवलप इनटू सीडलिंग, व्हेन एवरीथिंग इज नॉर्मल। ओके, सो सीडलिंग ग्रोज इनटू अ वेजिटेटिव प्लांट, दैट इज वेजिटेटिव फेज में चला जाता है वो। After some period of the vegetative plant undergoes maturation and enters the reproductive phase. So it develops flowers, fruits और later containing the seeds also. So finally क्या होता है? senescence जो होता है वो senescence stage में चला जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट की डेथ भी हो जाती है। अगर मैं बात करूं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो ग्रोथ जो है उसमें इंक्रीज होता है साइज या वॉल्यूम में। इंक्रीज किसकी वजह से हो रहा है? नया प्रोटोप्लाज्म बनने की वजह से। ठीक है, सो ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दस कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज और स्टेप, और ग्रोथ की वजह से क्या होता है? मैच्योरेशन होती है, फुल ग्रोन इंडिविजुअल्स बनते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, जैसे आपके स्पाइरोगायरा हो गया, वहां पर ग्रोथ में दो फेजेस होते हैं या फिर दो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, सेल डिवीजन एंड एनलार्जमेंट। सेल डिवीजन में क्या होता है? सेल डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं फिलामेंटस एल्गा में, नया जो बनेगा वो और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा और अपना साइज को इंक्रीज करेगा, है ना, जिसकी वजह से स्पाइरोगायरा का फिलामेंट ग्रो करता है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिफरेंट होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको क्या दिखेगा? 3 फेजेस दिखेंगे, दैट इज योर सेल डिवीजन, एनलार्जमेंट, डिफरेंशिएशन। 3 फेजेस आपको दिखते हैं किसमें? जब आपका सेल जो है ग्रोथ अकर करता है। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब ग्रोथ इनकर कर रहा है तब कंडीशंस डिफरेंट होंगी, जब सेल डिवाइड कर रहा है तब कंडीशंस जो हैं दे वुड बी वेरी वेरी डिफरेंट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। कमिंग टू द ग्रोथ रीजन्स इन द एनिमल्स और प्लांट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दो चीजें आप देखेंगे, एक होता है आपका सेल डिवीजन, एक होता है आपका सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, दोनों बहुत जरूरी एस्पेक्ट्स है ग्रोथ और डेवलपमेंट के। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बोथ एनिमल्स और प्लांट्स में। और मैमल्स की अगर बात करूँ तो ग्रोथ डिफ्यूज़ होती है। मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई उन रीजन्स को कि कहाँ ग्रोथ हुई है। एनिमल्स में कितनी ग्रोथ हुई है एम्ब्रियो की, दैट इज़ कंप्लीटेड क्वाइट अर्ली, ऑल्दो मैच्योर साइज जो है वो गेन हो सकता है स्पेसिफिक पीरियड्स में, तो इट इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट। आई होप दिस इज क्लियर। सो प्लांट्स में ग्रोथ डिफ्यूज होती है, लोकलाइज होती है। Diffuse growth occurs in the lower forms of the life, that is filamentous algae. So here each cell of the multicellular plant body can divide और वो enlarge कर सकता है। Higher plants especially trees जो होते हैं वो modular fashion में बनते हैं, that is the development is relatively open ended and इनका structure कभी भी complete नहीं होता है। ओके, सो इन प्लांट्स में अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ तो कंटिन्यूड रहती है थ्रू आउट द लाइफ, नए ऑर्गन्स बनेंगे, रिप्लेस करेंगे ओल्ड वंस को, तो ग्रोथ यहाँ पर लोकलाइज हो जाती है, ग्रोथ कन्फाइन हो जाती है स्पेसिफिक रीजन्स में। जैसे कि अगर स्टेम्स में नोड्स ब्रेक हो रहे हैं वहाँ ग्रो होगी, तो लोकलाइज ग्रोथ आकर क्यों करती है? ड्यू टू दी एक्टिविटी ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसे आप क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर सम स्पेशल सेल्स विच अंडरगो डिवीजन, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है टू डिवाइड एंड डिवाइड रैपिडली, दैट इज योर मेरिस्टेमेटिक सेल। अब मेरिस्टेमेटिक सेल एपिकल भी हो सकते हैं, इंटरकेलरी भी हो सकते हैं और लेटरल भी हो सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं फेजेस ऑफ दी प्लांट ग्रोथ। तो फेजेस अगर बात करें हम प्लांट ग्रोथ की, तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड कि जैसे कि एक प्लांट है वो बहुत सारे सेल से बना होता है, राइट? तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो ग्रोथ क्या होगा? सम टोटल ऑफ ऑल द ग्रोथ ऑफ इट्स सेल्स, राइट? कितनी ग्रोथ हो रही है वो उसके बेसिस पे आएगा। I hope you are getting my point. So, my dear students, it is very obvious to understand that
आपकी जो ग्रोथ होती है सेल्स की वो 3 मेन फेजेस में इन्वॉल्व होती है। पहला आता है फॉर्मेटिव फेज। फॉर्मेटिव फेज में क्या होता है, ये वो वाला फेज ऑफ सेल डिवीजन है जहाँ पर क्या होगा, मेन ग्रोथ हो रही है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन होती है, सेल डिफरेंशिएशन और सेल मैच्योरेशन होती है। चलिए विद द फर्स्ट वन लेट्स हैव अ लुक, दैट इज योर फेज ऑफ द सेल डिवीजन, दैट इज फॉर्मेटिव फेज। सो सेल डिवीजन इज द बेसिक इवेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर प्लांट्स। सारे सेल्स ऑर्गेनिज्म में रिजल्ट करते हैं फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, सो जो सेल्स होते हैं वो किससे बनते हैं, वो बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, सो दे आर फॉर्म्ड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू प्री एग्जिस्टिंग सेल्स वी नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स दैट आपके यहाँ पर ये ऐसी टाइप की डिवीजन है जहाँ पर ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की माइटोसिस, मतलब क्वांटिटेटिव है और क्वालिटेटिव डिवीजन भी होती है। जनरली कंप्लीट होती है 2 मेन स्टेजेस में। डिवीजन न्यूक्लियस का हो सकता है, कैरियोकाइनेसिस का, फॉलोड बाय डिवीजन साइटोप्लाज्म का हो सकता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस का। सो अंडरस्टैंड, जब भी माइटोसिस होगी तो सेल जो है पास करेगा थ्रू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और फिर रिजल्ट करेगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा तो दैट विल लीड टू द सेल वॉल फॉर्मेशन ऑल्सो, एंड अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू इनिशिएट और फॉर्म व्हाट, ये क्या फॉर्म करेगा, यस ये आपका फॉर्म कर देता है, और क्या, yes, so it forms basically your new cells. So resulting in the equal distribution of genetic material and cytoplasm in each of the 2 daughter cells thus formed. Further, the daughter cells are genetically similar to the parent cell. As a result of this process, cells having the genetic constituents get multiplied. So higher plants में cell divisions continuously occur करते हैं meristematic regions में, such as apical meristem. As a result, an increase in the number of cells take place in the meristematic region. कुछ डॉटर सेल्स हैं जो रिटेन करते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को, और कुछ ऐसे भी हैं जो नेक्स्ट फेज में एंटर करते हैं, फेज ऑफ द सेल एनलार्जमेंट। नाउ वी हैव द फेज ऑफ द सेल एनलार्जमेंट। देखो, वंस यू सी दैट द पर्टिकुलरली आपका फॉर्मेटिव फेज हो गया, अब आप समझते हैं कि सेल एनलार्ज भी करेगा। ठीक है, सेल का एनलार्जमेंट होता है, सेल एनलार्जमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, साइज ऑफ द टिश्यू या ऑर्गन्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सो जो एनलार्जमेंट होती है दैट अकर्स बाय सिंथेसाइजिंग द प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, एब्जॉर्बिंग द वाटर दैट इज हाइड्रेशन, और ये वैक्यूल्स को भी डेवलप करता है, ऐड करता है नए नए सेल्स मटेरियल्स को टू बी स्ट्रेच्ड, ताकि थिन इलास्टिक वॉल्स हों जिसकी वजह से स्लाइटली वो थिकर हो जाता है, और फाइनली आप देखते हैं वो परमानेंट भी हो जाता है। सो सेल एनलार्जमेंट में बी लीनियर और इन ऑल द डायरेक्शंस एज वेल। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये आता है फेज ऑफ सेल डिफरेंशिएशन या फिर सेल मैच्योरेशन। ठीक है, सो देखिए जब लास्ट फेज होगा ना, ड्यूरिंग द लास्ट फेज enlarged cells eventually acquire करते हैं specific size and form according to their location and role following the biochemical, physiological and morphological changes, that is cells undergo specialization or transformation. एज अ रिजल्ट बहुत काइंड के सेल्स होते हैं जो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। दीज डिफ्रेंशिएटेड सेल्स दे फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब आप जब देखो मैचुरेशन हो गई, पहले तो आपका क्या होता है, इट स्टार्ट्स विद फॉर्मेटिव फेज, फिर सेल एनलार्ज होता है, फिर सेल की मैचुरेशन होती है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं जो आपको हेल्प करेगा ये जानने के लिए दैट हाउ इट इज एक्चुअली एक्टिंग, ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, आप क्या करें, आप सबसे पहले जर्मिनेट करें, कुछ सीड्स लें पी के या बीन के। ठीक है, ओके, जब आप वो लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, यू जस्ट गो अहेड एंड सी। जब आपने ये एक्सपेरिमेंट देखा तो अब आप उसके बाद क्या देखते हो, यू ऑल्सो सी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट और फिगर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप क्या देखते हैं, यू सी माय डियर स्टूडेंट्स कि हाउ द थिंग्स एक्चुअली अकर। ठीक है, हाउ द थिंग्स एक्चुअली अकर। सो लेट्स हैव अ लुक हेयर। The one which we understand here is your simple, in your simple words, is about your experiment. आप कुछ सीड्स लें, उसको जर्मिनेट करें, पी में या बीन लें, और उसको मॉइस्ट सॉस डस्ट में आप इसको ऐड ऑन करें। ठीक है, और फिर आप क्या करें, पिक अप कपल ऑफ सीडलिंग्स विद द स्ट्रेट रेडिकल ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, वंस दैट इज डन देन व्हाट यू डू, इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद आप मेक श्योर करते हैं दैट यू आर एडिंग थिंग्स नाइसली। ठीक है, जब ऐसा होगा सो वी विल ऑल्सो हैव अ लुक हेयर कि जब सीड्स जो हैं वो जाएंगे तो व्हाट विल हैपन फर्दर।
आप मार्क करेंगे रेडिकल्स को फ्रॉम टिप टू बेस विद 10 to 15 पॉइंट्स एट इंटरवल ऑफ 2 mm विद द हेल्प ऑफ वाटर प्रूफ ऑफ इंडिया इंक। ठीक है, जैसे ही स्पून का इंक ड्राई, मतलब इंक ड्राई करेगी स्पून से, प्लेस करो सीडलिंग ऑन द मॉइस्ट ब्लॉटिंग पेपर इन पेट्री डिश। सीडलिंग को ग्रो करने दो 1-2 दिन तक, और आप इंटरवल्स मेजर करना शुरू कर दो। फिर आप यहाँ से देखेंगे ग्रोथ रेट के बारे में। जैसे ही ग्रोथ जो है पर यूनिट टाइम इंक्रीज करती है उसे बोलते हैं ग्रोथ रेट। तो रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, आपके यहाँ पर अर्थमेटिक आते हैं और ज्योमेट्रिक आते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होगा, आप देख सकते हैं फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली, यानी कि एक जो डॉटर सेल है वो कंटिन्यू करेगा टू डिवाइड वाइल द अदर डिफरेंशिएट्स एंड मेच्योर। सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन क्या होता है अर्थमेटिक ग्रोथ का, दैट इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय अ रूट इलोंगेटेड एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, यहाँ देखो ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक में। फर्दर अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहूँ तो ये आपका रहता है L इज इक्वल टू L0 प्लस आर टी। L जो है दैट इज योर लेंथ एट टाइम t, और L दिस इज लेंथ एट टाइम 0, और R क्या है, ग्रोथ रेट या एलोंगेशन पर यूनिट टाइम। सो अब यहाँ से हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट हैपन्स इन ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। मोस्ट सिस्टम में इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है और इंक्रीज करती है रैपिडली देयर आफ्टर एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। Both the progeny cells following mitotic division retain the ability to divide and continue to do so. ठीक है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, बाय ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। ठीक है, अभी ये आपको एक डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज अबाउट द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम विच कैन बी मेड इन 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, ये डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको। सो मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। Growth of the given system per unit time expressed as a common basis, example per unit initial parameter is called relative growth rate। और फिगर 2.6 अगर हम देखें यहाँ पर तो आप देखेंगे, फर्दर आई बाय द वे आई ऑल्सो शो यू देयर ऑल्सो। होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि आपका जो कर्व है ना वो वेरी करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ए और बी आर ड्रॉन विद डिफरेंट साइजेस बट शो करता है एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द एरिया इन द गिवन टाइम टू गिव लीज ए एंड बी। अब देखो ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ से हम क्या समझते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है ना। वेजिटेटिव ग्रोथ में क्या होता है, प्लांट के लीव्स रूट्स ये सब ग्रो करते हैं। तो ये जनरल 3 फेजेस में शो करता है, स्टार्टिंग स्लोली, बिकमिंग ग्रेजुअली फास्टर, और फाइनली ये फिर से क्या करता है, स्लो हो जाता है वापस से। सो ये जो 3 फेजेस हैं इनको टुगेदर हम ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स इन जनरल शोज 3 phases, 3 phases, starting slowly, becoming gradually faster, finally slowing again. So these 3 phases which are together known as grand period of growth that cover the whole of the vegetative history of an annual plant. So in a perennial plant such as आपका grand period of growth जहाँ पर होता है वो annually with the periods of dormancy between the repetitions हम study करते हैं। Getting my point? So it has to be very much clear. Okay. Now please understand here. In a perennial plant, such as grand period of growth is repeated annually with periods of dormancy between the repetitions. So in order to explain the grand period, हम क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, और वो ग्राफ आपको किस में हेल्प करता है, बेसिकली it gives you a lot of help for one of the important thing during the between the duration of growth and increase in dry weight of the plant. S shape curve बनता है जिसको आप sigmoid भी बोलते हो। अगर आप इसको ध्यान दें and you will finalize and see here, ये lag phase है। लॉग फेज एक्सपोनेंशियल हो रहा है और यहाँ पर आके एक पॉइंट पे स्टेशनरी हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट योर साइज वेट ऑफ द ऑर्गन एंड टाइम विच इज लैग, एक्सपोनेंशियल, लॉग एंड स्टेशनरी फेज। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये जो आपका कर्व बना है ऐसे करके सिग्मॉइड, ये 3 डिस्टिंक्ट फेजेस शो करता है, यानी ये 3 चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करवाता है। व्हाट आर द 3 थिंग्स विच इट अंडरस्टैंड्स? So it helps you to understand 3 important things. Number 1, lag phase or initial phase, which represents the initial stage of growth. ठीक है, lag phase initial होता है। यहाँ पर यूजुअली आपका जो ग्रोथ होता है वो स्लो होता है इस फेज पे। ठीक है, दूसरा आता है लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल फेज। ये वो पीरियड होता है जहाँ पर मैक्सिमम और रैपिड ग्रोथ होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सेल की मैक्सिमम होती हैं। यहाँ पर प्रोजेनी सेल्स जो हैं वो फॉलो करते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन को, रिटेन करते हैं एबिलिटी टू डिवाइड एंड टू कंटिन्यू टू डू सो। So however with limited nutrient supply growth slows down leading to the stationary phase. So हमारे पास exponential growth को हम इस तरह से देखते हैं,
W1 is W naught En. W1 is final size, weight, height, number, etc. W naught is initial size at the beginning of the period and R is the growth rate, जिसमें time t क्या है, time of the growth. C क्या है, base of natural logarithms. फाइन. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर देखें अगर तो आर क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट, और इसको हम मेजर यूज करते हैं टू मेजर द एबिलिटी ऑफ द प्लांट ऑल्सो टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट मटेरियल. सो इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द एफिशिएंसी इंडेक्स. प्लीज अंडरस्टैंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एफिशिएंसी इंडेक्स. ओके, कमिंग फर्दर वी ऑल्सो हैव योर एडल्ट फेज, जिसे आप स्टेशनरी फेज बोलते हैं. ओके, दिस फेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है बेसिकली? सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये आपका फेज कौन सा है, अडल्ट फेज, जिसे आप स्टेशनरी फेज भी बोलते हो. सो ये जो फेज होता है, यहाँ पर डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट होता है, प्लांट रीच करता है मेच्योरिटी में और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सेल्स की स्लो डाउन हो जाती है. प्लांट जो है वो क्या करना शुरू कर देता है, सेनेसेंस करना शुरू कर देता है. ठीक है, कमिंग टू दिस पार्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं किसको, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं किसी ना किसी की ग्रोथ को. जैसे आपके पास आता है एक्सटर्नल फैक्टर. ठीक है, एक्सटर्नल मतलब बाहर के कुछ ऐसे फैक्टर्स. सो रिगार्डलेस ऑफ देयर हैबिटेट इन विच अ प्लांट इज ग्रोइंग, इट इज एक्चुअली कॉन्टिन्यूसली सब्जेक्टेड टू द वेरिएबिलिटीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ में और डेवलपमेंट में किसी प्लांट के. सो इंपॉर्टेंट क्या है अमंग दीज, टेम्परेचर, लाइट, ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमने स्टडी भी करने हैं. ठीक है, नाउ वी हैव द टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट. हाउएवर मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम लिमिट्स टेम्परेचर की ज़रूरत होती है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़. अब एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है, क्या पता उसका जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो दूसरे किसी का रिक्वायरमेंट नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट? सो इट कैन वेरी, वो वेरी करता है, इम्पैक्ट करता है. सो देर आर सर्टन लिमिट्स फॉर टेम्परेचर ऑल्सो. ठीक है, कुछ ना कुछ लिमिट्स आपको मिलती हैं टेम्परेचर की भी. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर इंस्टेंस में देखूँ, विंटर सेरल्स की अगर मैं बात करूँ, दे मेक सम ग्रोथ एट टेम्परेचर ऑफ 34 to 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, वेयर एज इन दैट टेम्परेचर रेंज पम्पकिन्स एंड मेलन्स डू नॉट ग्रो एट ऑल, ये ग्रो ही नहीं करते. ठीक है, दैट इज वन पॉइंट टू अंडरस्टैंड. आई होप दिस इज क्लियर. सिमिलरली आपके यहाँ पर टेम्परेट रेंज पम्पकिन्स और मेलन्स की एग्जांपल दी हुई है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है माय डियर स्टूडेंट्स, अबव द मिनिमम पॉइंट ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट होती है अंटिल अ सर्टन ऑप्टिमम टेम्परेचर इज अटेन्ड, अबव विच इट बिकम्स स्लोअर एंड अल्टीमेटली कंप्लीटली रिटार्ड हो जाता है. सो ऑप्टिमम टेम्परेचर वेरी करता है ग्रेटली विद द स्पीशीज ऑफ द प्लांट. इट ऑल्सो वेरीज विद द एज ऑफ द प्लांट. सो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट्स आर हायर देन द टेम्परेट वंस. ठीक है, अब आपके पास यहाँ आते हैं दो चीज़ें, आर्कटिक और एल्पाइन स्पीशीज. ये ग्रो कर सकती हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे भी या फिर इवन एट द टेम्परेचर जो स्लाइटली फ्रीजिंग से थोड़ा बिलो हो. सो ऑप्टिमम टेम्परेचर यूजुअली नो हायर देन 10 डिग्री सेल्सियस. ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल स्पीशीज दैट वैरीज फ्रॉम अराउंड 30 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस, और फॉर द टेम्परेचर स्पीशीज इट वेरीज फ्रॉम 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस. तो ये वेरी कर सकता है एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट एज वेल. सो जो ड्यूरेशन का इफेक्ट है फॉर विच अ प्लांट इज एक्सपोज टू अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट ऑल्सो वेरीज विद द स्पीशीज, वो स्पीशीज के साथ वेरी करती है. फॉर एग्जाम्पल प्लांट विद लाइक यू हैव अ प्लांट जो कि कंसिडरेबल ग्रोथ करता है, अगर उसको आप टेम्परेचर दे दो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, सेम टेम्परेचर के डेलीटेरियस इफेक्ट होंगे, नुकसान होगा अगर आप उसको लंबे समय के लिए दे देते हो. सो दैट ऑल्सो हैव टू बी मैनेज्ड एंड हैज़ टू बी चेक्ड अपॉन. ठीक है, अब देखते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है, सॉइल टेम्परेचर ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है रूट्स की ग्रोथ को भी और शूट की ग्रोथ को भी. अंडर नेचुरल कंडीशन टेम्परेचर इज साइक्लिक इन्वायरमेंटल फैक्टर. नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है ना डे और नाइट का, वो ग्रेटली वेरी करता है एंड विद ओनली फ्यू एक्सेप्शंस प्लांट ग्रो बेटर व्हेन नाइट टेम्परेचर्स आर लोअर देन डे टेम्परेचर्स. समटाइम्स टर्म थर्मोपीरियोडिसिटी इज यूज्ड टू डेजिग्नेट द इफेक्ट्स ऑफ एन अल्टरेशन ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द डे एंड नाइट अपॉन द ग्रोथ एंड अदर रिएक्शंस ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो. ठीक है, सो इससे हमें समझ आती है कि हाँ टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट.
कमिंग टू योर लाइट, लाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। लाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। व्हाट डज इट डू? बेसिकली इट हेल्प्स अ लॉट, बहुत हेल्प करती है ये भी, ठीक है। लाइट जो है, इंटेंसिटी, क्वालिटी ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट affect the growth through several ways. It greatly influences several important physiological processes, जैसे क्लोरोफिल कितनी बनेगी, सिंथेसाइज कितने टाइम में होगी, about the stomata movements, about the photosynthesis, about the formation of anthocyanin, टेम्परेचर क्या होगा एरियल ऑर्गन्स का, एब्जॉर्प्शन क्या होगा मिनरल्स का, परमिएबिलिटी कितनी होगी, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये सब चीज़ें जो हैं वो भी इफेक्ट रखती हैं। दैट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू योर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी वेरी करती है प्लांट की ग्रोथ को, बिल्कुल करती है, इट हैज़ टू डू विद दैट। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट डज इट डू, ये करती क्या है। सो बेसिकली क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट जो है हमेशा इनवेरिएबली एसोसिएटेड होती है विद द चेंजेस ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइट, और अंडर नेचुरल कंडीशंस वेरिएशंस जो होती है लाइट इंटेंसिटी में उनका इफेक्ट सर्टन होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स या फिर जो आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, वीट हो गया, कॉर्न हो गया, पीस, तंबाकू हो गया, बहुत तेज ग्रोथ करते हैं, फ्लावर प्रोफ्यूजली विद द फुल सन, सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज सन प्लांट, ठीक है। सन की वजह से बहुत जल्दी इनमें क्या होता है, फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। सो दिस बिकम्स एन one of the important part as well. I hope this point is clear well. Right. So now moving further, we need to understand one more fact, and that fact is that जब ग्रो करते हैं ये इंटरमीडिएट लीफ लाइट इंटेंसिटी में, अगर लाइट इतनी अच्छी नहीं है, इंटेंसिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो जो सन प्लांट्स हैं वो और ज़्यादा टॉलर होंगे, लार्जर होंगे, थिन लीव्स होंगे, बट फ्लावर कम होंगे। तभी मैं कहती हूँ कि ये क्या है, सन प्लांट है। ओके, दैट इज वाई वी से इट इज अ सन प्लांट। Now, what do we need to understand here? We need to understand here that is जब ये ग्रो करते हैं इंटरमीडिएट लाइट इंटेंसिटीज़ में, तो यहाँ पर सन प्लांट्स जो हैं और ज़्यादा टॉल होना शुरू हो जाते हैं और लार्जर होना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है, थिनर लीव्स होते हैं बट फ्यूअर फ्लावर्स होते हैं, फूल इनमें थोड़े फ्यू ही रहते हैं। सो दे मेक वेरी पुअर ग्रोथ इन लो लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, very poor growth. Shirley, however, observed in the number of plant species कि जो absolute weight है, percentage है dry matter का tops में, thickness में, rigidity of the stem में और leaf thickness में, सारे increase करते हैं जिससे से light intensity जो है वो increase करती है, provided कोई भी other factor limiting नहीं है, ठीक है। सो लाइट जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बट लाइट ही नहीं, लाइट की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा क्या करती है, मैटर करती है। देखो, डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है सनलाइट की और सिग्निफिकेंट इनके इफेक्ट्स भी होते हैं अपॉन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स जो हमने कंडक्ट करे हैं अभी तक वो इस डायरेक्शन में इंडिकेट करते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है प्लांट की वो इंक्रीज होती है, उसमें ड्राई वेट इंक्रीज होता है, ठीक है। और वो उस जगह पर होती है जहाँ पर फुल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो प्लांट्स जो ग्रो करते हैं ब्लू वॉयलेट लाइट में, दे टेंड टू बी ड्वार्फ, दोज इन द रेड लाइट टॉल एंड स्पिंडली। यूवी और इंफ्रारेड वाले जो हैं वो इतनी ज़्यादा ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते। दिस क्वेश्चन हैव बीन इवन आस्क्ड बिफोर। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ओवरऑल जो ग्रोथ होती है ना प्लांट की ग्रीन लाइट में, okay, that is much less in either blue violet or orange red portions of the spectrum. This effect of green light is partially due to lower efficiency of photosynthesis in the green light. तो इसीलिए अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग तरह से प्लांट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्रेटेस्ट इलांगेशन स्टेम की या फिर हाइपोकोटाइल्स की मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में होती है ब्लू वॉयलेट पोर्शन में स्पेक्ट्रम के, लेस होती है ग्रीन में, और स्टिल ऑरेंज रेड या फिर लीस्ट होती है विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में, ठीक है। सो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड रियली वेरी नाइस। आई होप दिस इज क्लियर। So moving further, we also have to see or a check or put up check on something important. That is about the main aspect of how things work. Basically, when I talk about this, on the other hand, maximum elongation leaf blades की होती है full visible spectrum में और least होती है green।
लेकिन अब ये भी तो मैटर करता है कि कितनी देर तक ड्यूरेशन रही है इसकी, यानी कितनी देर तक इसने एग्जिस्ट करा है। दैट ऑल्सो मेक्स अ पॉइंट और सेंस, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक हियर। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और क्वालिटी ये तीनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं अबाउट द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, सो hence the rate of growth during the winters when the days are short, plants grow slowly. As the days get longer toward the spring, growth is accelerated. Duration of light not only affects photosynthesis but also greatly influences dormancy and flowering in the plants. अगर ऑटम के शॉर्ट डेज होंगे तो वो रिटार्डेशन लाते हैं ग्रोथ में इन मैनी प्लांट्स। सो एक फिनोमिना है विच इज नॉट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस, दैट इज नंबर ऑफ ट्रीज रिस्पॉन्ड टू शॉर्ट डेज ऑफ द ऑटम बाय सीजिंग टू द ग्रोथ एंड बिकमिंग डॉर्मेंट। ठीक है, सो जो डे का लेंथ है, पर्टिकुलरली लेंथ ऑफ डे, उसका मार्क्ड इन्फ्लुएंस होता है या फिर वो इन्फ्लुएंस करती है किसको? ऑन दी फ्लावरिंग। I hope this is clear. So plants according to the requirement of light for flowering are classified as long day plants या फिर short day plants. Okay, so they are also called as day neutral plants. लॉन्ग डे प्लांट्स को जनरली 13 से 14 घंटे की तो धूप चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट डे वालों को 13-14 से कम चाहिए। डे न्यूट्रल जो है वो लाइट लेंथ ऑफ द डे से इम्पैक्ट नहीं होते, दे आर नॉट गेटिंग इम्पैक्टेड बाय द लेंथ ऑफ द डे। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो ऑक्सीजन सप्लाई, ये भी तो इन्फ्लुएंस करता है। यस, इट डेफिनेटली इन्फ्लुएंसेस। सो डे ऑफ सप्लाई, बेसिकली ऑक्सीजन सप्लाई कितना हो रहा है एक दिन में, वो भी इसको बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करता है। प्लीज अंडरस्टैंड हेयर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट which is associated with the oxygen supply, with the exception of only those plants which are native to marshy and boggy terrains. The growth of all terrestrial plants is greatly retarded in poorly aerated soils. ठीक है, सो होता क्या है, यूजुअली शूट्स ऑफ प्लांट्स रिसीव एम्पल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बट जो रूट्स होते हैं दे मे और मे नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन टू ग्रो एंड फंक्शन नॉर्मली। प्लांट्स इन द फ्लडेड फील्ड वाटर लॉग हो जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाती है, ग्रोथ इनकी कम हो जाती है, ग्रोथ रिटार्ड होती है, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। सो वी विल नेवर वांट दिस, है ना? तो इसीलिए हम कोशिश क्या करते हैं, वाटर लॉगिंग ना हो। ठीक है, ताकि वाटर लॉगिंग ना हो। I hope this much is okay and understandable. Okay, so my dear students, now let's have a look here with the next part, that is about water. पानी का क्या रोल रहता होगा? That becomes a question, right? So, water is again an important part. How? Now, when I talk about the water, water एक essential part है। देखो, अगर पानी की सप्लाई अच्छी नहीं है तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। प्लांट्स अगर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? प्लांट विल नॉट बी एबल टू ग्रो वेल। Now, plant will not be able to grow well. Then what will happen? Okay, so what will happen? Water is one of the most essential requirements. Plants grow well but when ample, but not excessive moisture is available. Most of the plants में क्या होता है? Soil water content capacity जो होती है, that is to just above the wilting percentage, is most favorable for the growth. ठीक है, that is most favorable for the growth also. We need to also understand here कि for most of the plants क्या रहता है? Soil water content is the capacity to just above the wilting percentage is most favorable. Okay, we need to understand. So if I mention here to understand about this fact, we need to have a look here clearly that जो हमारी wilting point है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डिक्रीज होता है सॉइल वाटर कंटेंट तो इफेक्ट्स ग्रोथ पे अपियर नहीं होंगे। ठीक है, until the permanent wilting percentage is reached. At that permanent wilting percentage, all growth ceases, and if the soil is continuously above the field's capacity, as it may be in the poorly drained fields, plants grow slowly because roots are deprived of oxygen. Plants vary in their response to moisture deficiency. For instance, radishes, spinach, peppers, they wilt and they cease to grow when soil water percentage is low.
Cucurbits and tomatoes in the field stop growing and their lower leaves respond by changing from light green color to darker green or bluish color. So कॉर्न के लीव्स हो गए, बहुत सारे ग्रासेस हो गए, कर्ल कर लेते हैं जब वाटर सप्लाई इनएडिकेट हो. ठीक है. सो अगर सॉइल में डेफिशिएंसी है तो क्या होने वाला है? इट विल इम्पैक्ट अ लॉट. वेजिटेटिव ग्रोथ इम्पैक्ट होगी. ठीक है. So we need to understand here that it is what we need to understand कि ये बहुत ज़्यादा important role play करता है. Okay, so please understand it is about your soil nutrients. Okay, now coming up, अगर nutrients कम है, okay, if the nutrients are less, अगर nutrients नहीं है तो luxuriant growth हो सकती है किसी crop की? चांस ही नहीं है. It will not happen. ठीक है. So for luxuriant growth of any crop, field should be adequately rich in nutrients. Furthermore, these mineral nutrients do not affect the growth of such, but only when present in the form of ions or in the constituent of molecules. We need to have a look here. So now coming to your internal factors. Okay. सो इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं. जैसे ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए. जैसे बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स, कितना ग्रोथ रेगुलेटर है, कितना उसका परसेंटेज है, वो इम्पैक्ट करेगा. कार्बन नाइट्रोजन रेशो कितनी है, वो इम्पैक्ट करेगा. जीनोटाइप और जेनेटिक फैक्टर कैसा है, दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट एट अ लार्ज. ठीक है. सो दिस इज अबाउट ऑल वी हैव टू सी हेयर. And I just wish you the best, and I hope you have understood things well. Please take into consideration that you have to really do well and have to work really very nice. Okay, so we are going to keep this much for now. Till then, take care. Have a really wonderful day. Bye.